Let us see the next question. XYZ Limited, a company based in India, manufactures very high quality modern furniture and sells to small number of the retail outlets in India as well as in Nepal. It is facing tough competition. Recent studies on the marketability of the product have clearly indicated that the customer is now more interested in variety and choice rather than exclusivity and exceptional quality. Since the cost of the quality wood in India is very high, the company is reviewing the proposal for import of the wood in bulk from Nepalese supplier. The estimated net Indian rupees and Nepalese currencies cash flows for this proposal is shown below. So in million term, we have been provided with the cash flow information starting from year 0 to third year end. Cash flows have been given in the Nepalese currency term as well as in rupees term. The following information is relevant. XYZ Limited evaluates all investment by using a discounting rate at the rate of 9% per annum. तो cost of capital दे रखा है. All Nepalese customers are invoiced in the Nepalese currency term. Nepali currency cash flows are converted to rupees at the forward rate and discounting at the Indian rate. यानी ये क्लियरली हमको इंडिकेट करके रखा है कि आपको होम करेंसी अप्रोच यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, inflation rates in the Nepal and in India are expected to be 9% and 8% respectively. तो हमको इन्फ्लेशन रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है नेपाल में और इंडिया में 9% एंड 8% है. द करंट एक्सचेंज रेट इज गिवन एज 1.6 Nepalese currency per rupee. Assuming that say you are the finance manager of XYZ Limited, calculate NPV and highlight the portion modified IRR of the proposal. You may use the following values with respect to the discounting factor at the rate of 9%. हमको प्रेजेंट वैल्यू का भी इंफॉर्मेशन है और फ्यूचर वैल्यू का भी इंफॉर्मेशन है. अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से कैसे किया जाएगा आंसर. क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा दे रखा है, एक्सवाईजेड इज अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया. तो एक इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे डिसीजन लेना है. आई कम टू द रेलेवेंट पोर्शन. आगे जो हमको सारा का सारा कहानी दे रखा है उसका कोई इतना मायने नहीं है. आई कम टू द रेलेवेंट पोर्शन कि यहाँ पे एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज इन रुपीज टर्म एंड इन नेपालीज करेंसी टर्म दे रखा है. दैट इज से नेपालीज करेंसी में क्या होगा और हमारी खुद की करेंसी में क्या होगा, कैश फ्लोज दे रखा है. और हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, जैसे हमने डिस्कस किया दैट से हमको यहाँ पे होम करेंसी अप्रोच यूज करना है. तो अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम लोग देख सकते हैं दैट से वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इन्फ्लेशन रेट इंफॉर्मेशन. सो यूजिंग द इन्फ्लेशन रेट इंफॉर्मेशन जो हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे हमको परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम यूज करना है एंड वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ the forward exchange rate at the end of the first year and forward exchange rate at the end of the second year. उसके बाद से what we will do friends, से we will make the calculation of the conversion कैसे किया जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से. फिर हम लोग फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे. डोमेस्टिक करेंसी का जो कैश फ्लोज दे रखा है उसमें उसको एडजस्ट करेंगे और फिर उसको डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन. चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. हेडिंग लिखिए प्लीज, होम करेंसी अप्रोच. In that write down in this question
comma, from an Indian company point of view, we have to determine, comma, whether to undertake the project or not. Step number 1, calculation of forward exchange rate as per purchasing power parity theorem. Chalo, I request all of you to use triple PT and tell me that say what would be the exchange rate say from end of year 1 to end of year 3 for Nepalese currency per rupee. तो फ्रेंड्स अभी क्या किया जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए 1.06 into 1.09 divided by 1.08. So over here 1.09 divided by 1.08, ये जो आंसर है सो उसको मैं मेमोरी प्लस में डाल रहा हूँ m प्लस, उसके बाद से उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ 1.60, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का रेट आ जाएगा 1.6148 और कुछ नहीं करना है, इनटू हम लोग क्या करेंगे मेमोरी रिकॉल एंड से वी विल प्रेस इज इक्वल टू विल गेट द सेकेंड ईयर रेट 1.6298 और कुछ नहीं करना है, इनटू वंस अगेन हमको करना है मेमोरी रिकॉल एंड यू प्रेस इज इक्वल टू यू गेट द थर्ड ईयर रेट 1.6449, ऐसा किया जाएगा. सो इट इज 1.6148 into 1.09 divided by 1.08, 1.6298 into once again 1.09 divided by 1.08. ऐसा करके हमको फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर के एंड तक का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करना है यूजिंग परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम. स्टेप नंबर 2, conversion of foreign currency into home currency. उस पर हम लोग लिखेंगे नेपालीज करेंसी पर रूपी. क्वेश्चन में हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है 1.60, नेपालीज करेंसी इज इक्वल टू 1 रुपी. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो हमको दे रखा है 25 मिलियन, तो यहाँ पे आएगा 25 मिलियन और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 25 मिलियन into 1, that does not make a sense, divided by 1.6, यानी हम लोग लिखेंगे कैश फ्लोस इन नेपालीज करेंसी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय करेंगे एक्सचेंज रेट. ऐसा करके वी विल हैव द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक करेंसी. स्टेप नंबर 3, उस पर हम लोग दैट इज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. एनपीवी का कैलकुलेशन किससे किया जाएगा वो समझते हैं. इन दैट अगेन वी विल बी हैविंग द कन्वर्जन वंस अगेन. इट इज ईयर 0, end of year 1, end of year 2, end of year 3.
हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लोस इन नेपालीज करेंसी टर्म, जो कि हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, ये रहा। 25 is negative, 2.6, 3.8 and 4.1 positive. So 25 is negative, 2.6, 3.8 and 4.1. उसके बाद एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट हम लोग लिखेंगे 1.6 ईयर जीरो का, 1.6148 फर्स्ट ईयर के एंड का, देन 6298 एंड 6449. ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैश फ्लोस रुपीस टर्म में, जो हम लोग कन्वर्ट करके लेके आएंगे फ्रेंड्स. सो इट इज 25 डिवाइड बाय 1.6, उसका आंसर होगा 15.625. उसके बाद फ्रेंड्स 2.60 डिवाइडेड बाय 1.6148, उसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो इंडियन करेंसी का कैश फ्लो है ना उसको ऐड करेंगे, प्लस 2.869, दैट कम्स टू 4.4791. थर्ड ईयर के लिए क्या किया जाएगा, 3.80 डिवाइडेड बाय 1.6298, तो ये रुपी करेंसी आ गया प्लस 4.2 जो कि सेकेंड ईयर का दे रखा है, 6.5316. नेक्स्ट 4.10 डिवाइडेड बाय 1.6449, ये जो आंसर है उस पर 4.6 को ऐड करेंगे, 7.0926. This is what's with the cash flows that we have in the rupees term. फिर उसको डिस्काउंट किया जाएगा at the rate of 9%, और फिर प्रेजेंट वैल्यू और उसके ऊपर से एनपीवी का कैलकुलेशन. चलो, ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग आंसर ऑन योर ओन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो, ईयर जीरो फैक्टर इज 1, फर्स्ट ईयर एंड फैक्टर इज 0.917, second year factor is 0.842, third year factor is 0.772. ये रुपी करेंसी का कैश फ्लोस कैसे किया मैंने वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इट इज 25 डिवाइडेड बाय 1.6, बहुत ही आसान है ईयर जीरो का. फर्स्ट ईयर में क्या होगा फ्रेंड्स, 2.60 तो लिखा ही है हमने, डिवाइडेड बाय 1.6148 प्लस वी अंडरस्टैंड एट से द फर्स्ट ईयर का रुपी करेंसी का कैश फ्लो है 2.869. सेकेंड ईयर में वैसे करेंगे 3.80 डिवाइडेड बाय 1.6298 प्लस सेकेंड ईयर का कितना है 4.20. थर्ड ईयर में क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 4.10 डिवाइडेड बाय इट इज 1.6449. ये जो भी आंसर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, से थर्ड ईयर का कैश अक्रूवल ऐड कर देंगे 4.60. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड एट से ईयर जीरो का इट इज 15.625, फर्स्ट ईयर के एंड का 4.4791 इंटू 0.917, 4.1073, 6.5316 इंटू 0.842, 5.4996. $7.0926 into 0.772, 5.47
55। तो एनपीवी कैसे होगा 4.1073 प्लस 5.4996 प्लस 5.4755 माइनस 15.625। तो आंसर आता है नेगेटिव 0.5426। अनफॉर्चुनेटली एनपीवी नेगेटिव है, इसलिए हम लोग मना करेंगे कि हमको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। दैट इज द वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। एक छोटा सा रिवीजन। स्टेप नंबर 1 में हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने कन्वर्ट किया फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो सिर्फ हमने यहाँ पे लिखा। थर्ड स्टेप में हमने फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया, उसमें इंडियन करेंसी का जो कैश फ्लोज है वो ऐड किया, एंड दैट इज द वे वी हैव द डिस्काउंटिंग एंड एनपीवी टू बी फाउंड। A request to write down a final answer. Decision. Do not accept the project. Now friends, second part of the question में ऐसा दे रखा है, let's say you are required to make the calculation of modified internal rate of return MIRR of the proposal, और हमको यहाँ पे से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का इंफॉर्मेशन दे रखा है। ना इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। बेसिकली फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल आईआरआर का कॉन्सेप्ट होता है, हमारा नॉर्मल आईआरआर का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक लिमिटेशन है that it wrongly assumes that the cash flows will be reinvested at the rate IRR। यानी सपोज की, ऐसे बोल रहा हूं मैं, सपोज की कोई ये प्रोजेक्ट का IRR है 25% और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सिर्फ 10%। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है आईआरआर से, आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो भी हमारे इंटरनल कैश अक्रूवल्स होंगे दैट वुड बी रीइन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 25% in spite of the fact that the company has cost of capital of only 10%. So basically this is what's the biggest limitation of the IRR criteria. In order to overcome this limitation, we have a concept which is given a name as the modified internal rate of return. उसमें क्या किया जाएगा, जो री इन्वेस्टमेंट का रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कुछ नहीं दे रखा है तो जो री इन्वेस्टमेंट रेट का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, यूजिंग दैट रेट वी आर रिक्वायर्ड टू री इन्वेस्ट द इंटरनल कैश अक्रूवल्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, एंड ऑफ ईयर 1 टू एंड ऑफ ईयर 3 जो भी हमको कैश अक्रूवल्स मिलने वाले हैं वो सारे के सारे कैश अक्रूवल्स को हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे। व्हाट इज द रेट एट विच वी विल री इन्वेस्ट? It is the cost of capital which is given to us an example, that is 9%. Otherwise तो हमको कुछ कंपाउंडिंग के लिए इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन दैट केस वी अज्यूम दैट द कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज द री इन्वेस्टमेंट रेट। सो एट दैट रेट द इंटरनल कैश अक्रूवल विल बी री इन्वेस्टेड, और फिर हम लोग यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। Everybody is requested to pay attention। पहले इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। Now friends, what will happen? ये जो फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल होता है ना, उसको 2 साल के लिए री इन्वेस्ट किया जाता है। सो ऐसा लिखा जाता है यहाँ पे, इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 2 years। फिर यहाँ पे लिखा जाता है इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 1 year, और फिर इसको लिखा जाता है इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 0 year। 0 year का मतलब क्या? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपाउंडिंग। यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, 4.4791
into future value interest factor at the rate of 9% for 2 years is this 1.188. देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके भी समझ सकते हैं 1.09 इंटू 1.09 ऐसा करके उन्होंने दे रखा है। पर ऑफकोर्स हम लोग हमारा फैक्टर यूज नहीं करेंगे, जो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में उसी का इस्तेमाल करेंगे। 1.188 उसके बाद 6.5316 इंटू 1.09 7.0926 इंटू 1 ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरनल कैश अक्रूवल्स। Everybody is requested to pay attention. 4.4791 into 1.188 that comes to 5.3212. उसके बाद 6.5316 into 1.09 that comes to 7.1194. लास्ट ईयर का है 7.0926। अच्छा, now 5.3212 plus 1194 plus 7.0926, तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स 19.5332। ये फ्रेंड्स हमको कब मिलेगा? थर्ड ईयर के एंड में, यानी ईयर जीरो में। लिसन केयरफुली, ईयर जीरो में अगर हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं सो थर्ड ईयर में हमको उससे कुछ ज्यादा मिलता है। तो जो रेट से हमको रिटर्न मिलता है ना, उसको टेक्निकली बोला जाता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलो राइट डाउन आंसर, हेडिंग राइट डाउन। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट में लिखो MIRR। उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, normal IRR calculation has a limitation that it wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at the rate IRR. Full stop. Second point, in order to overcome this limitation, comma, we have a concept of modified IRR. Full stop. Third point, in calculation of MIRR, comma, we will compound internal cash accruals at the rate
कॉस्ट ऑफ कैपिटल और reinvestment rate given in the question. Full stop. Heading right down. Step number 1, calculation of future value of internal cash accruals. उसमें लिखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हम लोग कैश फ्लोस लिखेंगे, इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लिखेंगे. दीज आर द कैश फ्लोस एंड से उसको इंटरनल कैश अक्रूवल दैट इज से द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कंपाउंड किया जाएगा. So these are the cash flows into future value interest factor at the rate of 9% यानी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल for 2 years into future value interest factor again at 9% for 1 year into future value interest factor at the rate of 9% for 0 year. 0 year का मतलब क्या, उसको न तो कंपाउंड करना है न तो डिस्काउंट करना है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो 4.4791 इंटू, हमको फैक्टर का भी इंफॉर्मेशन एकदम अप्रोप्रिएट दे रखा है, 1.188, उसके बाद 6.5316 इंटू 1.09, 7.0926 इंटू 1. So 4.4791 into 1.188. So 5.3212. 6.5316 into 1.09. 7.1194. लास्ट का तो एज इट इज ही रहेगा, 7.0926, 5.3212 प्लस 7.1194 प्लस 7.0926, 19.5332. ऐसा करके हमको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है फॉर इंटरनल कैश अक्रूवल्स. So this is going to be received year 3 end. अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ modified internal rate of return. Now जैसे अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, ऐसा यहाँ पे कैलकुलेशन होगा. इन्वेस्टमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट MIRR फॉर n number of years is equal to future value of internal cash accruals. ईयर 0 का इन्वेस्टमेंट है 15.625, दिस इज द इन्वेस्टमेंट. उसके सामने हमको थर्ड ईयर में इतना पैसा मिलता है. सो इन्वेस्टमेंट इनटू 1 plus I raised to n is equal to what? 19.5332
5332 ऐसा होगा। और फिर आई को हम लोग बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे। सो इट इज 1 प्लस modified internal rate of return for 3 years is equal to 19.5332 divided by 15.625. So 1 plus MIRR raised to 3 is equal to 19.5332 upon 15.625. So 1.2501. फ्रेंड्स यहाँ पे रेस टू 3 है, इसलिए क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे इसका आंसर नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग एक रेट लेंगे जिसके ऊपर से फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे, दो वैल्यू फाइंड करेंगे, एक का वैल्यू इससे कम होगा, दूसरे का वैल्यू इससे ज़्यादा होगा, फिर दोनों को इंटरपोलेट करेंगे। बहुत ही आसान है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू गो विद द trial and error method. Friends, as far as my understanding is concerned, मुझे लग रहा है कि ये आंसर डिफिकल्ट नहीं है, पर बेसिकली क्या होता है, दैट्स इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू विच यू माइट हैव डन दिस मॉडिफाइड आईआरआर, तो एकदम से एग्जामिनेशन में इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10%, तो यहाँ पे 1.10 रेस टू 3, सो इट इज 1.331। 1.331 ज़्यादा हो गया, हमको जाना कहाँ था कि 1.250, तो थोड़ा नीचे आते हैं। लेट मी टेक 9%, तो क्या होगा 0.09, सो इट इज 1.09 रेस टू 3 3, so 1.2951, so 1.29 भी ज़्यादा है और नीचे हो। लेट मी टेक 8%, so 1.0823, so 1.2597। अरे यार आंसर तो इससे भी नीचे है, कोई बात नहीं, और एक नीचे आ जाते हैं, इसलिए उसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। 1.0723, 1.2251, यानी आंसर क्या है 50, आई एम सॉरी 1.07 रेज टू 3, यानी वी अंडरस्टैंड दैट्स आंसर क्या है 7 और 8 के बीच में है। सो अभी हमको क्या करना है, 7 और 8 को इंटरपोलेट करना है। तो देखो MIRR 1 प्लस MIRR रेज टू 3 ऐसा लिखा जाएगा। 7%, 8%, 7% का फ्यूचर वैल्यू क्या है 1.2250, 8% का क्या है 1.2597। सर 7 और 8 का डिफरेंस क्या है 1, और उसके फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1.2597 माइनस 1.2250, 0.0347। Now we will take usually the base of the lower one, in which we understand that it is 1.2501 minus 1.2250, 1.2501 minus 1.2250, 0.0251। यानी कि हमको ऐसा समझना है कि जब फ्यूचर वैल्यू बढ़ता है 1.2250 से लेके 1.2501 तक, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितना इंक्रीज होता होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। 7 से 8 यानी कि 1% से बढ़ता है तो फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होता है 3.47 पैसे से। तो जब वो 1.2250 से 1.2501 तक यानी 2.51 पैसे से इंक्रीज होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितना इंक्रीज होगा, it is 0.0251 into 1, that does not make a sense, divided by 0.0347,
into 1. Point 0.0251 divided by 0.0347. So 0.72% आएगा. अच्छा. So now we understand that the final answer is 7.72%. ऐसा करके हमको यहाँ पे से मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है. ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम के टर्म में भी समझ सकते हैं. वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. For the purpose of explanation, I am taking on x-axis so the cost of capital, independent factor, modified internal rate of return precisely, and on y-axis I am taking the future value interest factor. We know friends that से जैसे जैसे हमारा modified internal rate of return बढ़ता जाएगा, future value factor भी बढ़ता जाएगा. So the diagram goes like this. यहाँ से यहाँ जाएगा diagram. Now हम लोग ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए that say there is one rate which is 7%, जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करके रखा है, and there is another rate which is 8%. Exactly dimensions नहीं आ रहा है क्योंकि I have taken the approximate value. तो एक का है 7% और दूसरे का है 8%. 7% में हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना है 1.2250. 8% में क्या है 1.2597. ऐसा करके दो है. Now we understand that over here basically we want to know that say what is the rate at which the future value will be exactly 1.2501. हमको एक ऐसा रेट निकालना है यहाँ पे कि जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा 1.2501. ऐसा क्वेश्चन है. तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया कि 7 to 8 कितना होता है 1%. तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1% से बढ़ता है तो फ्यूचर वैल्यू कितने से बढ़ता है 3.47 पैसे से. देखो ये इंक्रीज हुआ 3.47 पैसे से. We want to know that say what must be the change in the cost of capital जब फ्यूचर वैल्यू से यहाँ तक बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक. यानी फ्यूचर वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स 2.51 पैसे का. ये रहा. तो तब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितना इंक्रीज होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, जो कि हमने करके रखा है 0.72%. तो 0.72% 7 में ऐड किया एंड वी गॉट द आंसर ऑफ 7.72%. और फ्रेंड्स अगर ये आंसर ऐसे बता रहा हूँ मैं 4 होता तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान था. 1.2501 अंडर रूट फॉर ट्वाइस करने का -1 into 100 तो 5.74 आंसर आ जाएगा. रेस टू 4 होता तो, पर यहाँ पे रेस टू 3 है इसलिए यहाँ पे ऐसा आंसर करना पड़ेगा. So this is the way we are required to do answer. Modified internal rate of return का रिवीजन करवा देता हूँ मैं. सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल, उसके बाद फॉर्मूला. यहाँ पे 3 होने की वजह से ट्रायल एंड एरर मेथड. 2 रेट फाइंड करो कि जिसके बीच में 1.2501 is falling in between both of them, and answer is say between 7 and 8. और फिर 7 and 8 को इंटरपोलेट करके हमारा ये फाइनल आंसर आएगा. ये डायग्राम हमारे सिर्फ समझने के लिए है.